So welcome. Our topic is plagiarism. How to avoid plagiarism in technical write-up. Okay. So what is plagiarism? The word comes from Latin plagiarius, meaning kidnapper. Okay. This is the act of presenting another's original thought or ideas as your own. Plagiarism means act of presenting another's original thought or idea as your own. Okay, माने किसी और का काम आप खुद का काम बोल के प्रेजेंट कर रहे हो, that is plagiarism. Okay, this can also be stated as using another exact word without proper citation. Okay, or it is a theft of intellectual property. What is intellectual property? It is an intangible property that refers to creations of one mind. Okay, आप किसी और का सोच को अगर चोरी करते हो, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करते हो, तब उसको प्लेगरिज्म कहा जाता है. Okay, so I hope this word is clear to you. सिंपल, किसी और का काम खुद का काम पे प्रेजेंट नहीं करना है, किसी और का आइडिया को चोरी नहीं करना है, किसी और का आइडिया को पेपर में डायरेक्टली विदाउट साइटेशन यूज नहीं करना है. ओके, फर्स्ट थिंग एनी न्यू एंट्रेंट, न्यू रिसर्च स्कॉलर of MTech or PhD do is paraphrasing. Okay, what is paraphrasing? During write-up, they will reorient the same information in different way. Okay, means they do, if I change a few word, I'm okay. Okay, कुछ पैराग्राफ में कुछ कुछ वर्ड चेंज करने से काम हो जाएगा. Is it right? No. It is wrong, because if one puts something in his or her own word without documenting the source, this is called paraphrasing. Okay, सेम नॉलेज को आप अपना वर्जन पे लिखने से भी गलत है. आप लिखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको साइटेशन देना पड़ेगा कि मैंने एक नंबर रेफरेंस से ये नॉलेज लिया है. Okay, the material is still someone else's idea and require acknowledgement, so you are giving acknowledgement in citation. So summary is that paraphrasing requires citation. Second thing, do I have to cite everything? Common knowledge need not to be cited. Like सन आपका कांस्टेंट है, अर्थ रोटेट करता है, ये कॉमन नॉलेज है, सो यू नो नीड टू साइट. कॉमन नॉलेज कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट व्हिच आर वाइडली नोन, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो यू नो नीड टू साइट. डिस्कसिंग one's own experience, observation or reaction do not need citation. आपका खुद का एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए साइटेशन नहीं चाहिए. प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा डू नॉट नीड साइटेशन. आपका खुद का रिसर्च, आपका खुद का रिजल्ट, साइटेशन जरूरी नहीं है. ओके, सो how to borrow information from other work? You can use quoting, you can use paraphrasing with citation. Okay, quoting with citation, and you can do summarizing.
how to borrow from other paper, quote, paraphrase, summarize with proper citation. Okay, that is the concept. So I am saying that you can use paraphrasing with citation. That is the concept. Now, what is quoting? Quoting are the exact word of an author or copying directly from a source word by word is not known as quoting. Means sometimes you need to copy a definition, so quote it and give citation. Okay, they must be exact word to word, word for word as they appear in the original document. So quotes require citation in addition to the use of quote mark. Okay, for example, here you can observe this is quotation is used. Okay, so this is the citation you need to give after this quotation. Okay, so just I have explained paraphrasing, so I am omitting this. What is summarizing? Involves putting the main ideas of one or several writers into your own words, see, including only the main points. It is necessary to attribute summarized ideas to their original sources. Summarizing means whenever you are writing section related work, okay, say you have 15 ideas taken from 15 papers, okay, so you are summarizing every paper in one paragraph. So at the end of paragraph you use citation. After each paragraph use citation. Okay, so this is how you can use summarizing concept. So what is the cause of plagiarism? अगर आप paraphrasing ठीक से नहीं करते हो, okay, the inadequate paraphrase is guilty of plagiarism even though the material is cited correctly. Okay, the writer has used too many words for word-to-word phrases from the source. Also, the order of the ideas is unchanged from the source. Okay, this is the cause of plagiarism. Sometimes permission is not sufficient, like one cannot use someone else's paper, artwork or presentation without proper citation even if he or she gave you permission. माने कोई पेपर का ऑर्डर से आप परमिशन लेते हो कि उसका मटेरियल आप यूज करोगे, फिर भी आप नहीं कर पाओगे. ओके, साइटेशन देने से, आपको परमिशन देने से डायरेक्टली साइट करके पूरा कॉपी करके दे दोगे, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, even if you created a work for a previous paper or presentation and you are using it again, you must cite your previous work. Okay, I am explaining again. You may be need to correct. Sometimes permission is not sufficient. You cannot copy other work with permission also. Okay, माने आप अगर किसी का नोट्स कॉपी करते हो और साइटेशन कर देते हो कि मैंने 5 नंबर पेपर से लिखा और 5 नंबर पेपर का ऑर्डर को भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका राइटअप सॉफ्टवेयर के थ्रू में चेकिंग होगा, तो सॉफ्टवेयर को तो मालूम नहीं होगा. सो आप ऐसा नहीं कर सकते हो. ओके, सेकेंड थिंग, ये सेकेंड पैराग्राफ का मीनिंग है, जैसे ऑलोक रॉय का एक पेपर सोचो 2018 में आया था. ओके, अभी ऑलोक रॉय फिर से 2022 में कुछ उसका एडवांस वर्जन फिर से पब्लिश करना चाहता है, तो उसका मटेरियल एग्जैक्टली इधर पे कॉपी नहीं कर पाएगा वर्ड बाय वर्ड.
ऑलोकोरोई को फिर से लिखना पड़ेगा पेपर। आइडियाज फिर से यूज करने के लिए पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा विथ साइटेशन। प्रीवियस वर्क को डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। So major causes of plagiarism are first copying straight away, डायरेक्टली कॉपी करते हो, पैराफ्रेजिंग ठीक से नहीं करते हो और साइटेशन नहीं देते हो, कोटेशन यूज करते हो लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज डायरेक्टली कोट करके ले लिया, ऐसा बहुत लंबा कोटेशन यूज नहीं कर सकते हो, और साइटेशन ठीक से नहीं देते हो। तो ये सब कारण है। कॉपिंग स्ट्रेट, poorly paraphrasing, poorly quoting, poorly summarizing, poorly citing, okay, are the causes of plagiarism. So just I have defined you what is plagiarism. Here I am going to explain types of plagiarism, okay. थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया था उसमें आप कैसे अवॉइड कर सकते हो वो सिखाया था, और कब कब प्लेगरिज्म होता है वो सिखाया था। ये राइट अप पे आपका टाइप्स सिखाया जाएगा कि स्टूडेंट लोग कैसे कॉपी करता है, उसका एक समरी यहाँ पे दिया हुआ रहता है। कंट्रोल सी मींस कॉपी पेस्ट कर दिया, किसी का राइट अप इधर से लिया और सारे लोगों को भेज दिया, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, वो तो डायरेक्ट क्लोनिंग हो गया, ओके। हाइब्रिड मींस combines perfectly cited sources with copied passages without citation. कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि एक रिपोर्ट बनाना है तो 20 पेपर से थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ कॉपी करेगा, करके मार्च करके सबमिट करेगा और साइटेशन भी नहीं देगा कि फैकल्टी को और या फिर सॉफ्टवेयर को मालूम नहीं चलेगा कि कहां से लिया है, तो वो हो गया हाइब्रिड। देन जस्ट 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया मैंने, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। फर्स्ट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग मींस सबमिटिंग अनदर वर्क वर्ड बाय वर्ड एज वंस ओन। सबसे खराब ये है कि किसी का पेपर आप एग्जैक्टली उठा के आपका नाम पे सबमिट करते हो, दैट इज क्लोनिंग, ठीक है। हाइब्रिड है कि बहुत सारा पेपर से मार्च करके कुछ बनाया और वो सबमिट किया, मींस कॉम्बाइन परफेक्टली साइटेड सोर्सेस विदाउट copied passages without citation, okay, with copied passages without citation, that is hybrid। बहुत सारा पेपर से मिलके बनाया। और कंट्रोल सी मींस contain significant portion of text from a single source without alteration, okay, कोई एक सिंगल सोर्स से कॉपी किया। मैशअप मींस mixed copied material from multiple sources। Find and replace means changing the keyword and phrases but retaining the essential content of the source। कि आप पैराग्राफ में वर्ड को चेंजिंग करके करके पूरा चेंज कर दिया, तो मशीन को तो मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ड के बाद कौन सा वर्ड कॉपी हुआ है, लेकिन आइडिया सेम है, ओके, दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस। कुछ स्टूडेंट ऐसा करता है कि गलत साइटेशन देते हैं, कॉपी किया जहां से वो ओमिट करेगा और दूसरा कोई साइटेशन दे देगा, दैट इज 404 एरर। इंक्लूड साइटेशंस टू नॉन एग्जिस्टेंट और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेस, लाइक फुल साइटेशन नहीं देगा, जर्नल का वॉल्यूम नंबर नहीं देगा या फिर पेज नंबर नहीं देगा, ओके। नेक्स्ट इज रिमिक्स, मींस पैराफ्रेजेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस मेड टू फिट टुगेदर, ओके। बहुत सारा सोर्स से पैराफ्रेज करके लिखेंगे। एग्रीगेटर मींस इंक्लूड्स प्रॉपर साइटेशन टू सोर्सेस बट द पेपर कंटेन्स ऑलमोस्ट नो ओरिजिनल वर्ड। खुद का कुछ काम नहीं होगा, बहुत सारा राइटअप लिखा है लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज एग्रीगेटर। रिसाइकल मींस
बोरो जेनरसली फ्रॉम द राइटर्स प्रीवियस वर्क विदाउट साइटेशन। माने जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोला, ए रॉय 2018 का पेपर फिर से 2022 को सबमिट करना चाहता है, थोड़ा सा चेंजेस करके, दैट इज रिसाइकल। रीट्वीट means include proper citation but relies too closely on the text original wording or structure। माने क्या करता है कि किसी का पुराना काम को सुंदर करके अच्छा से लिखेंगे और साइटेशन भी देंगे। मशीन तो नहीं समझ में आएगा मशीन को, लेकिन जब एडिटर के पास जाएगा, एडिटर उसको रिव्यूअर के पास सेंड करता है, तो रिव्यूअर लोगों को मालूम होता है कि ये सब काम ऑलरेडी मैं देखा हुआ है। ओके, सो वो पकड़ लेगा फिर, दैट इज रीट्वीट। ओके, तो आपको ऐसा हो सकता है कि ये जो 10 नाम दिया वो सब एक जैसा लग रहा होगा अभी, तो आपको क्या होगा करना है कि ये जो वर्ड है ना, एक एक करके लाइन का क्लोन, हाइब्रिड, कंट्रोल सी, मैशअप, ये फिगर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये असली ऐसे ही दिया हुआ है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वन लाइन का एक स्टेटमेंट है हर एक का, ठीक है, उसको एक साथ पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ओके, क्लोन, हाइब्रिड, कंट्रोल सी, मैशअप, फाइंड एंड रिप्लेस, 404 एरर, रिमिक्स, एग्रीगेटर, रिसाइकल, रीट्वीट, up to this। okay, and so today up to this only।